सो चारगैफ रूल जो है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? उन्होंने सजेस्ट किया था एक यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन क्या, तो it states that DNA of any species of organ should have a 1:1 stoichiometric ratio of purine and pyrimidine bases, and more specifically that the amount of guanine should be equal to cytosine and adenine should be equal to thymine. This pattern is found in both strands of DNA. They were discovered by Austrian-born chemist Erwin Chargaff. ठीक है, तो ये उनको मिला था। So this is what he did. तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग डीएनए को ढूंढा एंड उसको एनालाइज किया। ठीक है, उसके Yes, yes. बाद बाकी तो वो मैंने आपको दिखाई दिया था। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जो 5x174 है उसमें ये वेरिएशन था। तो अगर आप देख रहे हो A is not equal to T and G is not equal to C, तो इसका मतलब क्या है, वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। Single ठीक है, stranded. हाँ सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड है, करेक्ट। सो उसके बाद रोजलिन ई फ्रैंकलिन, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सो एक्चुअली शी वाज एन इंग्लिश पर्सन, राइट, तो वो इंग्लिश थे, मैंने फ्रॉम यूके। सो उनका नाम था रोजलिन एलसी फ्रैंकलिन। Okay, she was an English, and she was a very famous X-ray crystallographer. Okay, and X-ray crystallographer whose work was central to understanding the molecular structure of DNA, RNA, viruses, coal, and graphite. ठीक है, तो ये उनका बेसिक काम है। तो ज्यादातर उन्होंने काम कोल एंड ग्राफाइट को किया। ओके, although her works on coal and viruses were appreciated in her lifetime, her contribution to DNA were largely unrecognized during her life, for which she has been variously referred to as the wronged heroine. समझे कि नहीं, मैंने ठग दिया गया जिसको, या द डार्क लेडी, द फॉरगॉटन हेरोइन, ऐसे बहुत सारे नाम से उन्हें सुसज्जित किया गया है कि नहीं, एंड सो ऑन, इसलिए बहुत सारे अलग अलग उनको नाम दिए गए। फाइन, क्या क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? तो एक्चुअली शी डिड हर एजुकेशन फाइन। She graduated in 1941 with a degree in natural science from Newnham College, Cambridge, and then enrolled for PhD in physical chemistry under Ronald George Wayford Norris, the 1920 chair of physical chemistry at the University of Cambridge. Disappointed by Norris' lack of enthusiasm, she took up a research position under the British Coal Utilization Research Association. The research on coal helped her earn a PhD from Cambridge in 1945. Actually, वो जितने एडवांस सोच रखते थे, उनके जो गुरु थे वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, इसलिए उनको थोड़ा सा अजीब लगा। ओके, moving to Paris in 1947 as a postdoctoral researcher under Jacques Mering at the laboratory. Okay, she became an accomplished X-ray crystallographer. After joining King College London in 1955 as a research associate, she discovered the key properties of DNA, which eventually facilitated the correct description of double helical structure of DSTM. ओके, तो इनका जो काम था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था।
Fine. Yes, sir. You should know these things about people. आप लोग क्या है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं है, यही आपका गड़बड़ी है. So now, owing to disagreement with her director John Randall and her colleagues Maurice Wilkins, she was compelled to move to Buckbuck College in 1953. Because Wilkins and Randall से उनका पढ़ा नहीं, तो फिर वो उसको छोड़कर अलग यूनिवर्सिटी चल गई. Okay. Yes, sir. Yes, sir. She was best known for her photograph 51. So Franklin is best known for her work on X-ray diffraction images of DNA while at King's College London, particularly photo 51 taken by her student Raymond Gosling, which led to the discovery of the DNA double helix, for which Crick, Watson and Wilkins shared the Nobel Prize in 1962. Okay, तो इनके काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. ओके, बट जब बाद में पता चला, वाटसन फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उनको थोड़ी मालूम था विल्किंस चुरा के दिया. Watson suggested that Franklin would have ideally been awarded a Nobel Prize in chemistry along with Wilkins, but although there was not a rule, उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था, but नोबेल कमेटी ने नहीं दिया. समझ में आया? The Nobel Yes, sir. Committee did not make posthumous nominations. ऐसा कोई रूल नहीं था, but since एक hesitation था कि लड़कियों को नहीं देना चाहिए, so that is the problem. Okay. उसके बाद जब वो छोड़ के वहां से चले गए, तो वो वायरसेस पे अपना काम कंटिन्यू किए. Working under John Desmond Bernal, Franklin led pioneering work at Buckbuck on the molecular structure of viruses. Okay, so इसीलिए उनको वो मिला. उनके स्टूडेंट जो हैं उनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है. So on the day before she was to unveil the structure of TMV at an international fair in Brussels, she died of ovarian cancer at the age of 37 in 1958. Her team member Aaron Clark continued her research, winning the Nobel Prize in Chemistry in 1980. तो वो जो काम कर रहे थे उसको आगे लेकर गए, and she was also awarded the Clark was also awarded the Nobel Prize. देख रहे हो कितना पेनफुल लाइफ है उनका. So that is the concept. So this is things you should remember. You should give due respect. क्योंकि जब तक हम लोग एक्चुअल लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, तो we will not come to conclusion. Okay. So जो when she joined this university, King's College London, तो उन्होंने बोला था that she will be the only X-ray crystallographer. But रैंडल ने क्या किया था, वो मॉरिस विल्किन से भी वही काम करवा रहे थे, है कि नहीं? तो इस चीज से वो चिढ़ गए थे एक्चुअली, एंड देन शी लेफ्ट फॉर इट. ओके, चलिए, तो नाउ दैट विल गो बैक टू आवर वर्क. ये था समथिंग अबाउट दैट. तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, दैट A will pair with T and G will pair with C. तो जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DSDNA ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रपोज किया. तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है? ओके, सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DSDNA. तो ये जो है, ये कैसे सजेस्ट करता है? DSDNA रेप्लिकेशन. ओके, तो वही जो मॉडल है हमारा डबल हेलिकल मॉडल, उससे ये कंक्लूजन आता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो सपोज ये हमारा DSDNA है. ओके, सो दिस इज DSDNA. अब ये क्या होगा? दिस विल अनवाइंड इनटू 2 SSDNA. ओके, फिर Yes, sir. अब ये क्या होगा? अनवाइंड करेगा.
अनवाइंड किया एंड ये रेप्लिकेट करेगा। तो जब रेप्लिकेट किया, वन स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी ओल्ड एंड द अदर स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी न्यू। Okay. फाइन। सो ये ओल्ड है एंड ये न्यू स्ट्रैंड है। वैशाख। सो these are daughter DNA. Okay, daughter DNA. So the blue strand is called template and the yellow strand is called the new DNA strand. Okay, so therefore semi conservative. Clear? तो आप समझ में आया? तो वाई यू Yes, sir. कैन, जैसे अभी मैं आपको एक डीएनए बोलता हूँ तो आप क्यों उसका पेयर सजेस्ट कर सकते हो? द रीजन इज बिकॉज you know that A will pair with T and G will pair with C. Since जी। आप ये जानते हो, आप आराम से पेयर कर रहे हो, है कि नहीं? So this is the Yes, sir. double helical model of dsDNA. ठीक है? चलिए, तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए डिस्कस कर रहे थे, अब वही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है जी? चलिए, Yes, तो sir. अब हम लोग जो है क्लास वर्क किए थे एंड इस डीएनए पे आपका बहुत सारा क्लास वर्क एंड केवी पे क्वेश्चन भी आएगा। तो आप लोग तो सब बड़ा बड़ा पीछे से पढ़ लिए, बट आप क्लास वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फायदा क्या होगा? समझे कि नहीं? तो यू शुड नो व्हाट विल हैपन व्हेन। ठीक है जी? तो इसलिए अब हम लोग जो क्लास वर्क करेंगे वो ऐसा करेंगे। ओके, लेट अस डू सम क्लास वर्क्स। मैं आपको थोड़ा फोटो एक दो दिखा दूं, फिर चलेंगे। ये देख रहे हो, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स है। फाइन। ये देखिए, ये मेजर ग्रूव है एंड ये माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव अराउंड 12 एंगल मेजर है, ये माइनर है, इसीलिए इट डज नॉट लुक लाइक ए चोटी। फाइन, वो चोटी जैसे दिखता नहीं। क्लियर? एंड जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है एंड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? पहले आपको बहुत लोग क्या करते हैं, दिस ग्रोज दैट साइड, दिस ग्रोज दैट साइड, इसलिए एंटी पैरेलल। अरे ये तो एंटी हुआ, पैरेलल कौन प्रूफ करेगा? आपको पैरेलल भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। इसलिए आप पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे, द टू स्ट्रैंड्स ग्रो ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे, they are equidistant from each Equidistant. other Throughout the length. throughout its length. Throughout the- तो इससे पैरेलल एंड एंटी दोनों साबित हुआ। ये देखिए, ये आपका बेस बेयरिंग है। क्लियर? सो दिस इज द बेस बेयरिंग। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? तो ये आपका जो है एक बेस है, दिस गुआनिन, दिस ए एंड टी, एडेनाइन थाइमिन। तो ये देखो 6th का अमीनो ग्रुप है कि नहीं? तो 6th का अमीनो ग्रुप इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद ऑक्सी ग्रुप, ये ऑक्सी है। ओके, तो 2,4 डाइऑक्सी है ना, एंड ये आपका Yes, जो sir. है Yes, sir. ये अमीनो ग्रुप के साथ पेयर कर रहा है। तो A and T are forming 2 hydrogen bonds. Similarly, G and C are producing 3 hydrogen bonds. इसका ज्यादा क्लियर डाटा है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हेलिक्स। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? दैट रेल्स में आपका शुगर फॉस्फेट है एंड रंग्स में आपका क्या है? Nitrogenous बेस। base. ठीक है? वाटसन एंड क्रिक डीएनए को हम लोग बी डीएनए बोलते हैं। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये हमारा डिफरेंस है, इसको भी देख लेंगे। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, तो उसको
हम लोग देखेंगे। ओके, इसमें आप देखिए, जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, बाकी सारे राइट हैंड। राइट ठीक है, तो ऑल आर राइट हैंडेड। इसमें 12 बेस पेयर्स पर टर्न। ठीक है, सो 12 बेस पेयर टर्न एंड जो डायमीटर अराउंड 18 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, जबकि वाटसन एंड क्रिक डीएनए हमारा बी डीएनए है, 10 बेस पेयर्स पर टर्न, ओके, अराउंड 19 to 20 एंगस्ट्रॉम, राइट हैंडेड हेलिक्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नियरली आसपास का है एडीएनए, 11 पर टर्न एंड 23 एंगस्ट्रॉम राइट हैंडेड। ठीक है, सी डीएनए में क्या देख रहे हो आप, 9.33 बेस पेयर्स पर टर्न, अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम राइट हैंडेड। डी डीएनए क्या देख रहे हो, 8 बेस पेयर्स पर टर्न एंड राइट हैंडेड हेलिक्स, उसका डायमीटर अनसर्टेन है, मैंने वेरिएबल है एक्चुअली। ठीक है, तो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो टेबल है ये आपका अलग अलग डीएनए का डिस्कस करता है। ये अलग अलग डीएनए अलग अलग कंडीशंस पे अकर करते हैं। ओके, तो इसलिए जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अकर करता है उसको हम लोग बी डीएनए बोलते हैं। एंड ये जो बी डीएनए है वो ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है किसको, इट ऑलमोस्ट रिजेंबल्स द व्हाट, बोलो, आवर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो इसलिए वाटसन एंड क्रिक ने इसी को लिया था। कोई शक? चलिए, No, sir. सो अब हम लोग जो है कुछ उसके प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए डिस्कस करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएस डीएनए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सो पहला प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्या, डीनैचुरेशन एंड रीनैचुरेशन। ओके, डीनैचुरेशन एंड रीनैचुरेशन, इसका मतलब क्या है, जब आप कंडीशंस ऑल्टर करेंगे तो डीएनए क्या होगा, वो टूट जाएगा, एंड जब आप वापस करेंगे तो वो वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. so if a DNA molecule is exposed to high temperature or titration with an acid or alkali, the two strands unwind and separate due to breakdown of hydrogen bonds. Okay, this process is known as denaturation, renewing or melting. समझ रहे हो, उसको डीनेचुरेशन कहते हैं, रिनील कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं ना। उल्टा कर दो, when denatured DNA is incubated at low temperature, the two separated strands reassociate to form a duplex. This is called क्या, annealing या रीनेचुरेशन। Renaturation. ठीक है, इसीलिए तो डीएनए कैन डीनेचर एंड रीनेचर, इसीलिए नेचर ने उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्सेप्ट किया। प्रोटीन्स क्या होता है, वो डीनेचर तो कर Can जाता denature है but cannot renature. बट कैन नॉट रीनेचर। Renature. इसीलिए कच्चा अंडा उबला अंडा हो जाता है, बट उबला अंडा को ठंडा करने से वो वापस कच्चा अंडा नहीं बनता। नहीं होगा। So this is the concept. So why this happens? Because of denaturation and renaturation of Renature. कोई शक? तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है ऑफ डीएनए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सेंस एंड एंटी सेंस। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको आपको पता चलना चाहिए।
जनरली लोग इंतजार करते हैं कि ये 12th में पढ़ाएंगे, क्यों? जब हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो इसी साल पढ़ लेंगे, तो दिक्कत क्या है? तो दैट इज कॉल्ड सेंस एंड एंटीसेंस चेन। ओके, तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। व्हाट इज सेंस एंड एंटीसेंस? तो हमारा जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, 5 प्राइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग, एंटी कोडिंग, एंटीसेंस, टेम्पलेट या माइनस स्ट्रैंड। ओके, it is complementary to the mRNA and the basis of mRNA क्या? Synthesis. Okay, now the mRNA is made complementary to this strand. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली टेम्पलेट, याद रखना, ठीक है? तो आप इसको देखोगे एंड एमआरएनए बनाओगे। बट ये जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, इसको हम कोडिंग, सेंस, नॉन टेम्पलेट प्लस कहते हैं। इट इज सिमिलर टू mRNA, but instead of T there is U. हो गया? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए आपको बेसिकली दो चीजें याद रखना है कि 3 to 5 जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग टेम्पलेट कहेंगे, एंड 5 to 3 जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग नॉन टेम्पलेट कोडिंग या सेंस कहेंगे। ओके, एक ही नाम याद रखना जरूरी है, ये बेसिक नेम है, बाकी आप सारे याद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए याद रखना टेम्पलेट का मतलब क्या है भाई, उसको देखकर आप आरएनए बनाएंगे। ओके, बट कोड सेंस का मतलब क्या है? जो आरएनए जैसा दिखेगा। तो लेट अस सी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एक डीएनए बनाते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मेक एन एग्जांपल। तो आप सपोज हम लोग लिखते हैं ATGCTA फाइन। तो ये आपका आ गया 5 प्राइम एंड ये आपका आ गया क्या? 3 प्राइम। 3 प्राइम। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए आप। 3 प्राइम क्या होगा? TACG। हाँ, तो ये आपको पता आना चाहिए। TACG मतलब डबल स्ट्रैंड एक में जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यही फॉलो। हाँ, तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है? सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए किस से बनाएंगे? ऑलवेज 3 to 5। 3 to 5 से बनाएंगे इडियट, बिकॉज आप जब बनाओगे वो पेयरिंग करेगा ना, तो इसीलिए जो आरएनए बनाओगे वो क्या बनाओगे? वो 3 to 5 बनाओगे। समझ रहे हो? तो जब 3 का उल्टा क्या है? 5। समझे? T का उल्टा A का उल्टा इधर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे T के जगह पर U हो जाएगा। तो now you see
So this is your mRNA. Fine. ये आपका है mRNA. mRNA. क्लियर? तो ये हमारा mRNA Yes, है. sir. अब आप खुद देख लीजिए, इसको हिलाते हैं. ये डीएनए है एंड ये आपका mRNA है. तो ना अगर आप इस दोनों को रखें ऐसे, तो डजंट इट लुक सेम? बताइए. तो ये एग्जैक्टली सेम है. Yes, sir. तो ओनली यू का फर्क होता है. तो समझ में आया? तो दैट इज वाई जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, so template strand will code for, okay, template strand जो है codes for mRNA. समझ में आया? तो इसलिए आपको बोला जाएगा T, तो आप क्या लगाओगे? A. आपको बोला जाएगा A, तो आप क्या लगाओगे? U. क्योंकि RNA में T नहीं होता. Okay, codes for mRNA on the basis of DNA RNA base pairing rule. So what is the DNA RNA base pairing rule? A pairs with T, A pairs with U, and T pairs with A. Similarly, G pairs with G pairs with C, C. and C pairs with G. Okay, C pairs with G. Actually, ये आपका डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो इक्वल टू साइन है, बट मैं बना देता हूँ बॉन्ड. तो ये एक और बना देंगे. हो गया. तो ये आपका डीएनए आरएनए बेस पेयरिंग है. इसीलिए mRNA क्या है? इट लुक्स लाइक द सेंस स्ट्रैंड. समझ आया? तो mRNA लुक्स लाइक द सेंस स्ट्रैंड. आया समझ? तो उसको क्यों सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है? बिकॉज mRNA उस जैसा दिखता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, तो ये Yes. सर अगर आप बोल दिए, तब मैं क्लास वर्क बताता हूँ. तो क्लास वर्क बताइए फटाफट. क्लास वर्क. तो मेक द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ, ओके, मेक द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ क्या? 5 प्राइम ATA GCCA 3 प्राइम. बताइए. ये आपका क्लास वर्क है. तो क्या होगा? बोलो आंसर. व्हाट इज आंसर? So 5 prime U A U A U A U C G U G U 3 prime. इडियट. आपको भेजा खटाना है, बेवकूफ गधे. इसको 3 प्राइम बनाना पड़ेगा. तो आपको 3 प्राइम. कौन सा स्ट्रैंड दिया गया है? 5 प्राइम 3 प्राइम. हमें पता है 3 सेंस प्राइम या टेम्पलेट? टेम्पलेट. Which strand is given to you, idiots? Sense or template? सेंस सेंस Sense. Sense. तो इसका मतलब सीधा बना दो ना, उसको यू बस चेंज कर देना. आपका mRNA जो है वो सेंस जैसा दिखता है. तो भाई आप क्या करोगे? आप बोलो सर आपने तो टेम्पलेट दिया नहीं. आप इससे टेम्पलेट बनाओगे, फिर टेम्पलेट से mRNA बनाओगे. उससे सीधी बात. तो आप क्या करोगे? You will waste time by first making template strand,
then transcribing it to mRNA. But you forgot that sense looks like क्या? Sense looks like क्या? mRNA. mRNA. So just write the same strand without with you instead of T. T. समझ आया? तो आप क्या करोगे? आप आंसर बताइए। तो आप UAGCACA. तो 5 प्राइम क्या हो जाएगा? सॉरी क्या? AU. CA 3 प्राइम। 3 prime. तो समझ आया? ये सबसे Yes, sir. आसान है। तो आपको ध्यान देना है, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है केवीपीआई में, एंड ये ऐसे में ही आएगा, इसलिए आप याद रखेंगे। तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है, तो आपको देखना है क्या दिया है। अगर सेंस दिया है तो क्या करेंगे? जगह यू बोलो। लगा देंगे. आप अरे simply ठीक है, U लगा लगा देना। ठीक है जगह यू। अगर टेम्पलेट दिया है तो बना लेना। वो बदलना अगर पड़ेगा. दोनों दिया है तो आप टेम्पलेट से बना सकते हो या सेंस से कॉपी कर सकते हो। कोई शक? नो सर. थोड़ा रिजॉइन करिए No, तो और sir. प्रैक्टिस करेंगे। मैं एंड कर रहा हूँ।